PTI کے جتنے سپورٹرز ہیں یا لیڈرشپ ہے ان کو سب سے پہلے پیغام ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے. ہم سب کو پتا تھا کہ سزا کا فیصلہ ہوا ہے. یہ القادر کیس ہے. ظاہراً جب یہ ہائی کورٹ میں جائے گا تو اس کو تو کہتے 2 ہیئرنگز بھی نہیں اس کو لگنی چاہیے. یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا کیس تھا. آج بھی مذہب کارڈ استعمال کیا جا رہا ہے. ویری وارم ویلکم ٹو نیوز لائن. میں ہوں ڈاکٹر ماری ذوالفقار خان. ویوز ملک میں ایک بار پھر سیاسی بے یقینی کی فضا ہے. ملکی سیاست کس سمت میں جائے گی؟ سیاسی عدم استحکام کا خاتمہ کب ہوگا؟ یہ وہ سوالات ہیں جو گزشتہ روز 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بانی PTI اور بشرا بی بی کو سزا کے بعد ایک بار پھر سے اس وقت جو ہیں وہ زبان زد عام ہے. اس وقت ڈسکشنز کا جو ہے وہ حصہ بن چکے ہیں. 190 ملین پاؤنڈ کیس کا جو 148 پیجز کا فیصلہ ہے، 148 پیجز پر مشتمل جو تفصیلی فیصلہ ہے وہ جب سامنے آ گیا، لیکن فیصلہ جہاں ایک طرف سیاسی ماحول کے مستقبل کے حوالے سے بے یقینی پیدا کر رہا ہے، وہاں یہ فیصلہ PTI کی لیگل ٹیم کی اہلیت پر بھی کافی سارے سوالات اٹھا رہا ہے، کیونکہ اس فیصلے کے مطابق PTI لائرز اس کیس کو ہینڈل کرنے میں بری طرح ناکام رہے ہیں اور متعدد مواقعوں کے باوجود استغاثہ کے مقدمے میں شک و شبہ پیدا کرنے میں بھی ناکام رہے ہیں. اب اس سے لیگل ٹیم کی اہلیت پر سوالیہ نشان تو اٹھتے ہی اٹھتے ہیں. اب فیصلے کے بعد کی صورتحال کی اگر بات کریں تو PTI نے علامتی احتجاج کیا ہے اور خبر ہے کہ آنے والے منڈے کو یعنی پرسوں PTI ہائی کورٹ میں فیصلہ چیلنج کر رہی ہے. اب ہائی کورٹ میں PTI کی لیگل ٹیم کامیاب ہوتی ہے یا نہیں اور ریلیف ملتا ہے یا نہیں، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. لیکن اس وقت اہم یہ ہے کہ کیا سزا اور مذاکرات دونوں ایک ساتھ چل سکیں گے. آج کے جو ایک اہم سٹیٹمنٹ آئی ہے سینیٹر عرفان صدیقی صاحب کی جانب سے، اس کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ PTI کو انہوں نے ایک میسج دیا ہے اور کہا ہے کہ 2 اور 3 دروازوں سے مذاکرات ایک ہی وقت میں نہیں چلا کرتے. اس کے ساتھ ساتھ یہاں سوال یہ بھی اہم ہے کہ اس کیس کے فیصلے سے کیا بانی PTI کا کرپشن کے خلاف نیریٹو جو ہے وہ متاثر ہوگا اور PTI کی عوام میں جو ساکھ ہے کیا اس فیصلے کے اس پہ کوئی اثرات آئیں گے؟ آج کے پروگرام میں یہی ڈسکس کریں گے. شیلا رازا صاحبہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے. بیرزیال چودھری صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز سے آپ کا تعلق ہے، اور ساتھ ہی ساتھ نعیم حیدر پنجوتا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے. نعیم صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتی ہوں. ابھی ہمیں کچھ ہی دیر میں جو ہے وہ جوائن کر لیں گے، لیکن دانیہ صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی جو بیرسٹر یہ جو عرفان صدیقی صاحب کی جو ٹویٹ آئی ہے، کیا اس کو ہم یہ کہیں کہ اس سے یہ نظر آتا ہے کہ ایک آپ کے اینڈ پہ ایک گھبراہٹ جو ہے وہ آ رہی ہے کہ شاید پس پردہ PTI کے جو ہیں وہ مذاکرات ان کوارٹر سے شروع ہو گئے ہیں جہاں وہ شروع دن سے کرنا چاہتے تھے، اور شاید اس سے آپ کی ارریلیونس جو ہے اس کی طرف اشارہ کیا ہے عرفان قادر صاحب نے، کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں جی، ہم نے ڈے 1 سے ایک بات کی ہے ڈاکٹر صاحب، اور وہ یہ ہے کہ یہ اس جماعت کے ساتھ اگر تو بیٹھ کر کسی نے نیگوشیٹ کرنا ہے تو وہ حکومتی جماعت ہے اور اس کے الائز ہیں، ان ساروں نے مل کے کرنا ہے اور مشاورت سے ہونا ہے. جو ان کی سوچ ہے وہ ڈے 1 سے جلاؤ گھیراؤ کی ہے، نفرت کی ہے، تفریق کی ہے، اور ان کی میں نہ مانوں کی سوچ ہے. یا یہ گہربان پکڑتے ہیں اور گہربان سے اگر ان کا کام نہ پڑے تو یہ بنے تو یہ پاؤں پکڑتے ہیں. اب یہ NRO مانگ رہے ہیں، یہ کبھی NRO کے لیے کبھی ایک کے دروازے پہ جاتے ہیں، کبھی دوسرے کے دروازے پہ جاتے ہیں. لیکن آپ جتنے مرضی دروازے کھٹکا لیں یا جو مرضی کر لیں، جب تک یہ چیزوں کو فیس نہیں کریں گے چیزیں آگے نہیں بڑھیں گی. اور انہی جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کے نیگوشیٹ کرنے کے بعد چیزوں کو مفاہمت سے چلانے کے بعد آپ کو حل ملے گا. دوسرا جو آپ نے کیس کی پہلے ذرا چلائی اور کی، دیکھیں ابھی تو ان کا ایک جیب کی تلاشی میں لی ہے، اور یہ وہ جماعت ہے جو کہتی تھی کہ فلاں چور ہے، فلاں رسیدیں لے، ان سے رسیدیں مانگتے رہے، ان سے چیزیں مانگتے رہے، ان کے اکاؤنٹوں سے پیسے جاتے رہے اور آتے رہے. ان کے پاس جو یہ جھوٹ بولتے رہے، یہ ایک چیز کے اوپر بھی کوئی ثبوت نہیں دے سکے. جھوٹ کے اوپر مبنی پوری عمارت تھی. اور پھر آپ کو پتہ چلا کس طرح سلائی مشینوں والوں نے، یہ تو کہتے ہیں نا کہ آپ جن کی سٹیل ملیں تھی سیاست میں آنے سے پہلے وہ اپنا احتساب اور اپنی رسیدیں دیں، یہ تو سلائی مشینیں چلانے والے یہ آج ایک
آپ اگر کیس کی ڈیٹیلز میں بھی جائیں اور اگر آپ کو ان کے اپنے وکیلوں سے بھی آپ ملیں تو یو ول نو اینڈ یو ول ریئلائز دیٹ دے ہیو بیڈلی فیلڈ. یہ ان کی ایک جیب کی تلاشی لی ہے تو یہاں سے اربوں روپے نکل آئے. ان کو جہاں سے پکڑیں گے اسی طرح ان کی چیزیں نکلیں گی. اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کے کیسز ختم کرنے کو نیگوشیشن کہتے ہیں یا بیٹھ کے اس کو کہتے ہیں مفاہمت کہیں تو وہ اس سے لگتا ہے کہ جیسے عرفان صاحب جو ہیں وہ ان کو لگ رہا ہے کہ شاید آپ ایز اے پارٹی بیکاز آپ سے مذاکرات اور حکومتی پارٹی جو ہے اس کی شاید ریلیونس نہیں رہتی کہ اگر یہ بیک ڈور ان کی چل رہے ہیں 2-2-3-3 وہ کہہ رہے ہیں تو پھر کیا فائدہ یہ مذاکرات کا کیا فائدہ. ڈز دس سے کہ ہم مطلب ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے, ہم irrelevant ہیں؟ دیکھیں اگر تو ان کا دل ہے کسی اور سے بات کرنے کا تو کر لیں. اس کے اوپر بھی تمام جتنے بھی ادارے ہیں ان کی سٹیٹمنٹس بڑی کلیئر ہیں کہ حکومتی جماعتوں کے جو کمیٹی بنی ہے وہی بیٹھ کے بات کرے گی. لیکن جو بیک ڈورز چل رہے ہیں یہ بیک ڈور صرف ان کو انگیج کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ اپنے دل کو بہلانے کے لیے یہ کر لیں. مطلب بتائیں بیک ڈور میں کیا ہو سکتا ہے یا کیا ہوگا. انہوں نے جو کام کیے ہیں مجھے بتائیں کہ آپ کو سزائیں ہو رہی ہیں ہر کسی کو 9 مئی کے, ان کی 9 مئی سے بچیں گے؟ تو اپنے ادارے کے لوگوں کو نہیں چھوڑا. آپ کو بالکل یہ کہیں یہ خدشہ نہیں ہے کہ شاید آپ irrelevant ہو جائیں یا آپ کے پاس کچھ دینے, آپ کے پاس سے چیزیں نکل کر کہیں اور چلی جائیں. ہم irrelevant ہوں یا نہ ہوں اس کا بھی کوئی فرق ہمیں نہیں پڑتا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, لیکن آپ سمجھتے ہیں یہ ریلیونٹ نہیں ہوں گے کہ ملک جو ہے اس کو چلنا چاہیے. ہماری پریورٹی ہے یہ روز جلاؤ گراؤ تفریق نفرت آگ لگانے والی ان کی جو گند ہے یہ بند ہو. چیزیں مفاہمت کے تحت آگے چلیں. ملک بہتر ہو رہا ہے. آج غریب بے روزگار کی کوئی آواز سننے کے لیے ہے. پاکستان ایک صحیح سمت کی طرف جا رہا ہے. جس کو کہتے تھے 24 گھنٹے میں ڈیفالٹ ہوگا, کوئی کہتا تھا 30 گھنٹے میں ہوگا, وہ اس کے اوپر آج کہہ رہے ہیں اس کی اکانومی بہتر ہے یا ادھر پہنچ چکی ہے یا شرح سود میں کمی ہو گئی ہے, کس طرح چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. تو ان کو آگے اس چیز کو آگے چلائیں. یہ وہ بیک ڈور کریں فرنٹ ڈور کریں اپنے دل کو بہلاتے رہیں جو بھی کریں, ان کو اینڈ میں ریلیف جو ہے نا وہ پارلیمان سے ملے گا اور پارلیمانی جماعتوں سے ملے گا. اچھا چلو صاحبہ, یہ کیونکہ عرفان صدیقی صاحب جو ہیں بہت جب سے یہ کمیٹی بنی ہے وہ نپا تولا ہی بول رہے ہیں. کمیٹی کے جتنے اراکین ہیں وہ سب جو ہے نپا تولا بول رہے ہیں. آپ نے یہ اسٹیٹمنٹ دیکھی, اس کی کیا آپ سمجھتی ہیں کہیں سے ایکنالجمنٹ ہے کہ بیک ڈور ایک تو چل پڑا ہے, پی ٹی آئی کا چل پڑا ہے, اور کہیں نہ کہیں یہ فرسٹریشن کی جو ہے وہ عکاسی کرتا ہے جو اس وقت کمیٹی میں پائی جاتی ہے؟ اب جہاں تک بیک ڈور کی بات ہے تو پیپلز پارٹی بھی یہ سمجھتی ہے اور تمام وہ لوگ جو سیاست پہ نظر رکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی بہت ساری تاریخ بیک ڈور پہ ہی ملتی ہے. مطلب تھرڈ آپشن کے طور پہ انہیں لایا گیا. ان کے لانے والے کہتے ہیں یہ کوشش کرتے تھے 100 سیٹوں کی, لیکن پرویز مشرف انہیں 36 یا 30 سیٹیں دینا چاہتا تھا. پھر بھی ان کے لیے بیک ڈور سے جہاز اڑائے گئے. پھر بیک ڈورز کو یوز کرتے ہوئے ان کے لیے جو ہے وہ فون کر کے ممبرز کی تعداد کو پورا کیا جاتا تھا. پھر جب ان کی حکومت گری ہے پھر بیک ڈور کے پاؤں پکڑ رہے تھے, اور پھر کہا بھی گیا کہ بھائی آپ یہ واپس لے لیں عدم اعتماد جس کی ایک بات ہوتی ہے. تو یہ عادی ہو گئے. 1 سال سے یہ بہت کوشش کر رہے تھے, اور اب وہ ایک طرف سے یہ کہتے ہیں کہ خوش آئند بات ہے, اور بیرسٹر گوہر بھی ان معاملات کی تصدیق کرتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ٹویٹ بھی ہو جاتا ہے. تو یہ پتہ نہیں کون سی خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہے نا ہم کیرٹ اور اسٹک لے کے چلیں گے تو ہماری چیزیں کھوں گی. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور جتنا زیادہ یہ اپنے آپ کو یہ کہیں گے کہ اب وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں, تو اس وقت بھی ہم یہی کہہ رہے تھے کہ حقیقی آزادی صرف یہی نہیں ہے کہ غیر ملک کی طرف اشارہ کیا جائے. حقیقی آزادی یہ بھی ہے کہ آپ اپنے ملک میں یہ چاہیں کہ جس کا جو کام ہے وہ کریں. اور اب جو انہوں نے یہ حرکت کی ہے کہ ایک طرف سے ٹویٹ کرنا, ایک طرف سے خوش آئند قرار دینا, ایک طرف سے یہ کہنا کہ ایک صبح میں کہنا کہ ہماری ان سے مختلف موضوعات پہ بات ہوئی ہے, شام کو یہ کہنا کہ نہیں صرف سیکیورٹی پہ بات ہوئی ہے, ایک دن پہلے کہنا کہ نہیں ہوئی ہے, پھر کہیں کہ قائد کہہ رہے ہیں کہ میری ہو گئی ملاقات. تو یہ ایک عجیب مضحکہ خیز سچویشن انہوں نے اپنے بیانات سے دی ہے. لیکن جہاں تک عرفان صدیقی صاحب کی بات ہے تو یہ بات صحیح ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ نہیں بات کرنا چاہتے, اور نہ آپ نے کبھی کی جب آپ حکومت میں تھے, جب بھی آپ نے کبھی مذاکرات کے ہمیشہ آپ نے این آر او اور یہ سب کہا, تو پھر آپ نہ کریں. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے, جو کل صبح تک جب ہم اسمبلی میں تھے کل تک اور ان کا فیصلہ نہیں آیا تھا, تو یہ سوچے بغیر کہ آج فیصلہ آنا ہے اور فیصلہ عدالت سے ہی آئے گا, یہ این آر او مانگ رہے تھے وہاں پہ کہ عمران خان کو رہا کرو.
नहीं, लेकिन ये एनआरओ है ना, जब फैसला आने वाला है तो ठीक। आप असेंबली में क्या कर रहे हैं? लेकिन एक्नॉलेजमेंट तो एक तरह से फिर इरफान सिद्दीकी साहब की भी फ्रस्ट्रेशन और एक्नॉलेजमेंट है कि वो बैकडोर चल पड़ा है, जिसपे ये कमेटी जो है वो इररेलेवेंट शायद हो गई। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि फिर फायदा नहीं है, क्योंकि जो दो कश्ती में सवार होता है उसका सफर कहीं पूरा नहीं होता। आप दो कश्तियों में लेकिन एक फ्रस्ट्रेशन साथ नहीं है कि नहीं चल आपने सकते। बैकडोर और फिर उनको भी तो पैगाम है कि वैसे आप तो जो उनसे- उर्दू है वो बहुत ही माशाल्लाह, उसमें धोबी वाली भी एक मिसाल आती जी, है, जी, तो जी। वो भी हो जाता है। लेकिन ये है कि दो कश्तियों में आप पाँव एक साथ नहीं धोबी रख वाली मिसाल पूरी सकते, सुना दें। तो वो ज़रा कुछ अच्छा नहीं लगता। हमारा टीवी है ये, और वैसे तो ज़रबुल मिसल ही है, लेकिन फिर वही है कि दो कश्ती में एक साथ सवार होंगे तो आप किसी भी मंजिल पे लेकिन नहीं पहुंचेंगे। तो बेहतर ये है कि हम सवार को बचाना चाहते हैं, वो जिस बिल्कुल कश्ती ठीक। को बेहतर समझता है वहाँ चला जाए। नहीं, लेकिन इसमें मैं ये कह रही हूँ कि कहीं ना कहीं ये भी तो है कि जो वो बैकडोर जहाँ चल रहे हैं वहाँ पे भी थोड़ी सी अपनी नाराजगी का इजहार है कि जी आपने भी अगर शुरू कर दी है तो फिर हमारे साथ इनका क्या, इस कमेटी का क्या, इसका क्या रेलेवेंस है? वहाँ से तो कल बड़ी वाज़ेह तौर पर ये बात आ गई और बाकायदा टिकट्स आए, क्योंकि एक ये बात समझी लेकिन जा शायद रही थी वसवसा कि कहीं जब है। क्योंकि वहाँ पे एक वजाहत लोग इसलिए ज़्यादा समझ रहे थे कि वैसे ही एपेक्स कमेटी जो है वो बैठती है, सब करती है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सूरत हाल जो है केपी की, और अब जो बैगन का मामलात हैं वहाँ पे अगर वो बैठे तो ज़रूरी नहीं था कि उसकी प्रेस रिलीज़ होती, लेकिन कुछ लोगों को आदत होती है मिसयूज़ की, और वो उन्होंने किया उसको, तो इसलिए वजाहत हो गई। लेकिन अगर वो चाहते हैं और इसको समझते हैं कि इससे राब्ता निकल रहा है, हालांकि बड़ी वजाहत से कहा गया कि बैरिस्टर गौर मांगते रहे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे सहाफ़ी हैं जिनकी खबरें इस वक्त समेत अंसार अब्बासी साहब की जो वो तो बस हो ही जाता है, तो बस ठीक है। उस पे इरफान सिद्दीकी साहब एक ज़ीरक आदमी है और वो समझ रहे हैं कि हमें मुसाफिर को बचाना चाहिए, तो वो चाह रहे हैं कि वो एक ही कश्ती में जाएं। नईम साहब की तरफ चलूं। नईम साहब, ये बताइए कि जब तक फैसला नहीं आया था तब तक ये कहा गया कि जब जो भी फैसला आएगा उसके बावजूद भी मुज़ाकरात जो हैं वो चलेंगे। अब जब फैसला आ जाता है उसके बाद, जिस तरफ शैला भी इशारा कर रही थी, जो ट्वीट आई है जिसमें एक दफ़ा फिर कहा गया जी हमूदुर रहमान कमीशन को जो है वो पढ़ा जाए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को तशबीह दी गई है जनरल रियाया से। आप कैसे समझते हैं कि ये जो नेगोशिएशंस का प्रोसेस है इस तल्ख गुफ्तगू के बाद, इन ट्वीट्स के बाद जो एक सिलसिलावार जो है वो चलती आ रही हैं, ये कंटिन्यू किस तरह करेगा नेगोशिएशंस, चाहे वो जो है इस कमेटी के साथ हो या वो बैकडोर हो, ये किस तरह चलेगा इन ट्वीट्स के साथ, इस तरह की तल्ख ज़बान के साथ किस तरह चलेंगी चीज़ें? देखिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर हमारी, आपने मौका दिया। बात यह है कि आप गोली चलाएं, आप एक बंदे को कत्ल करें, आप सजाएं दें, आप झूठे मुकदमात में वर्कर्स को उठाएं, उन पे तशद्दुद करें, तो क्या जिस पे तशद्दुद हो रहा है या जिसको गोली मारी जा रही है या जिसका वर्कर जो है वो उठाया जा रहा है, जिसके वर्कर के साथ किया जा रहा है या खुद उसकी ज़ात के साथ किया जा रहा है कि सजाएं दी जा रही हैं, तो वो फिर क्या उस पर बात ना करें? आप सजा दें और हम कहें जी कि बड़ा ज़बरदस्त किया जी, आपने हमें सजा दी है झूठे मुकदमे के अंदर, तो डेफिनेटली जब आप कोई ऐसा रवैया इख्तियार करेंगे, जब कोई ऐसा अमल करेंगे तो उसका रिस्पॉन्स तो आएगा ना, फिर रिस्पॉन्स तो आना चाहिए। रिस्पॉन्स क्यों ना आए? हमारे लोग अभी भी जेलों में हैं, खान साहब जेल में हैं, सजाएं झूठे मुकदमों में दी जा रही हैं, बीबी साहबा को गिरफ्तार कर लिया गया है, और कसूर क्या है जी कि आपने अच्छा काम क्यों किया? 1 रुपए का भी फाइनेंशियल बेनिफिट है इस केस के अंदर साबित नहीं हो पाया, ना इमरान खान साहब, ना बुशरा बीबी साहबा, और ना ही हुकूमत पाकिस्तान को किसी का नुकसान इसमें। ये कसूर था जी कि आपने वो खुफिया है वो बंद लिफाफे के अंदर आकर काबीना के सामने मामला क्यों रखा? तो ये पॉइंट जो उठाना था वो पॉइंट तो आपने उठा लिया कि ये क्यों रखा, वो तो चलो एग्रीमेंट हुआ, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुई, और मलक रियाज का पैसा था वो उसके अकाउंट से जो है वो सीधा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आ गया। लेकिन क्या नवाज शरीफ के बेटे या नवाज शरीफ से भी किसी ने सवाल किया है कि 3 गुना ज्यादा जो रकम ली गई थी मलक रियाज से, वो किस सिनेरियो के अंदर है, किस वजह, कहाँ पर आपने वो उसको फायदा दिया, या किस मद में जो है वो महंगी प्रॉपर्टी जो है वो आपने बेची? अगर एक प्रॉपर्टी, मेरी गाड़ी है वो 5 है और एक बंदा मुझसे 20 करोड़ की ले लेता है, तो डेफिनेटली वहां का कानून हरकत में आएगा कि ये महंगी क्यों गाड़ी बिकी है। तो महंगी प्रॉपर्टी जो है वो 2 गुना 3 गुना 4 गुना ज्यादा जब बिकी, तो वो जो 9 अरब रुपया था उसका हिसाब तो आपको देना चाहिए था, आपको इस केस के अंदर आना चाहिए था, आपको सजा। आपने जब 19 नवंबर 2018 को लेटर लिखा था उस वक्त नेशनल क्राइम एजेंसी को,
तो आपने इसी को इन्वेस्टिगेट कराने के लिए जो है वो लेटर लिखा था और फिर पता चला आगे जाके जो मलिक रियाज साहब ने जो है ये प्रॉपर्टी खरीदी। क्या वजह है कि जब ये सारा पैसे जब वापस आने का सिलसिला शुरू हो गया, जो कनाइवेंस बीच में इस वक्त जो कहा जा रहा है कोर्ट की तरफ से अब तो प्रूव हो गई है, उसमें आपने उस वक्त फिर हुसैन नवाज साहब का जो केस है उसको इन्वेस्टिगेट नहीं किया? उसके बाद भी आपकी हुकूमत तकरीबन कोई 2.5-3 साल हुकूमत थी, आप करते, आपने क्यों नहीं किया? क्यों नहीं आपने उधर जो है वो नेशनल क्राइम एजेंसी को इस बारे में और लेटर लिखे, या आपने उसको परस्यू क्यों नहीं किया? आपके पास तो टाइम था, आप करवा सकते थे। देखिए 2018 के अंदर जो लेटर लिखा गया था, उस लेटर के अंदर यही कहा गया था कि ये प्रॉपर्टी जो है ये महंगी क्यों जो है वो खरीदी गई है और ये फायदा क्यों दिया गया है। और जब उस पर तमाम तर कार्रवाई हुई और वहां पर कार्रवाई के बाद ये बात जो है वहां पर नेशनल क्राइम एजेंसी ने ये किया कि ये रकम जो है ये कोई वहां पर मामला ये तो नहीं उठाया गया था कि ये मनी लॉन्ड्रिंग की है, बल्कि एक सस्पिशियस ट्रांजैक्शन ये क्योंकि उन्होंने तफसीलात अपनी दे दी, उसे उन्होंने डिफ्रीज किया और डिफ्रीज करने के बाद वो पैसा अपने पाकिस्तान अकाउंट में जिसमें भी लाना चाहता है वो अपने अकाउंट में रखता है, या जहां पर उसने उसको जुर्माना हुआ था वहां पर दे देता। अब इस मामले के ऊपर नैब ने उस वक्त जो केस है इनके ऊपर नैब को बना देना चाहिए था। इमरान खान तो किसी को जो है वो जबरदस्ती नहीं कह सकता था ना कि ये करो, तो नैब से पूछ एफआईए को इसमें एंगेज ही नहीं किया। ये तो रिकॉर्ड का हिस्सा है केस में कि जो ये सारा केस चल रहा था, आपने नैब एफआईए को जो कि बाय द चार्टर ऑफ एसिड रिकवरी यूनिट जो उनकी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए थी, आपने तो उनसे कुछ शेयर ही नहीं किया, आपने उनको इन्वॉल्व ही नहीं किया इसमें, आपका जो एसिड रिकवरी यूनिट था। नहीं देखिए बात ये है कि हम तो बड़ा वाज़ेह कह रहे हैं ना, आज भी कह रहे हैं कि अगर तो उस वक्त जो है वो लेटर जो लिखा गया था उस लेटर के ऊपर नैब कार्रवाई करता, हमें तो कोई इतराज नहीं था, हमें तो कोई उस पर नहीं था कि वो नैब कार्रवाई ना करे। तो अगर नैब ने उस वक्त कार्रवाई नहीं की तो अब नैब कार्रवाई करके उसे पकड़ ले। अब इसका ये जवाब तो नहीं बनता कि उस वक्त अगर नवाज शरीफ को नहीं पकड़ा गया या हसन को नहीं पकड़ा गया तो अब छोड़ दिए जाना चाहिए था। तो बेसिकली तो उन्हें पकड़ना चाहिए था। अब जब आपने उन्हें पकड़ा नहीं है तो जिसका कोई उसमें कसूर ही नहीं है, इमरान खान का आप बताएं ना कि आपके अकाउंट के अंदर वो पैसे आए, आपकी बेगम के अकाउंट के अंदर पैसे, आपके किसी रिश्तेदार के अकाउंट के अंदर पैसे आए, या जो वो प्रॉपर्टी है जो है उसको आप सेल कर सकते हैं। नहीं सर, 2-3 चीजें। एक तो ये कि नैब उस वक्त कैसे चल रहा था ये हम सब जानते हैं। आपने जब बीच में आपका ये जो इसमें अब जो ये वाइट कॉलर क्राइम प्रूव हो गया उसमें तो नजर आता है कि जब आपका अपना इसमें से मतलब जो है वो निकल गया तो फिर आपका कंसर्न ही नहीं था कि क्योंकि अब वो प्रॉपर्टी जो है वो मलिक रियाज साहब के पास आ गई थी कि उसको इन्वेस्टिगेट करें ताकि मजीद कुछ और जो है इसमें से निकले। आप नहीं चाहते थे कि आप उनको डिस्टर्ब करें क्योंकि उसके एवज बहुत कुछ मिल चुका था। इससे तो यही नजर आता है टाइमलाइन जिस तरह चल रही है उसमें एक तरफ उनका जो है वो केस चल रहा है जिसमें एसिड रिकवरी यूनिट सपोजिटली उसको परस्यू कर रहा था, वहां से जमीनें भी उनसे ही खरीदी जाती हैं, उनसे ली जाती हैं, ट्रस्ट में एक जो है वो जो डोनर है वो भी वही है। मतलब बहुत सारी कनेक्शंस जो हैं वो एक तरफ ही इशारा करती हैं अगर आप डॉट्स कनेक्ट करें। यही चीज अगर आसिफ अली जरदारी या नवाज शरीफ साहब ने की होती तो आप लोग तो रोज बैठ के कनेक्शंस जो हैं वो जोड़ रहे होते हैं। नहीं देखिए, कनेक्शन जोड़ने के लिए ना आपको सबूत चाहिए होते हैं। आप सबूत क्या दे रहे हैं वहां पर? आप जो लोग आप बतौर सवाल आए वो तमाम लोग तो अपनी गवाही से फिर गए, हालांकि आपने उठाकर उनसे गवाही ली। हमें पता है कि आजम खान को जबरदस्ती उठाया गया तो वो तो अपनी गवाही से मुकर गया। उस गवाह का बयान पढ़ लें, आप परवेज खट्टर का बयान पढ़ लें। पूरे केस में एसिड रिकवरी यूनिट का जो पूरा रिकॉर्ड है वो गायब क्यों है? देखिए, जो एसिड रिकवरी यूनिट का जो पूरा उसके अंदर फाइल है वो गायब उनसे पूछे क्यों किया गया? हम तो ये कह रहे हैं कि जो काबीना का जो लेटर था वो भी रिकॉर्ड के ऊपर, जो वहां पर डीड के ऊपर थे उसके आपने रिकॉर्ड का हिस्सा किया, वो तो बड़ा डीड के अंदर जो है बड़ा वाज़ेह था कि उसको कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो उस लेटर को, उस डीड को जो है वो जो लिफाफा था उसको खोल सकती है। तो उस लिफाफे को आप क्यों नहीं खोल रहे? आप खोल देते, आपने तो खोला ही नहीं है। आपने तो पूरे केस के अंदर ये कहा ही नहीं कि ये पैसा मनी लॉन्ड्रिंग का था या पाकिस्तान का था, ये तो आपका केस ही नहीं था। आपने कहा कि इमरान खान ने फायदा लिया, तो मुझे दिखा दें कहां पर फायदा लिया। आप फायदा ये बना रहे हैं कि वो जो जमीन थी वो जमीन जो है वो इमरान खान के नाम पर लगी थी। आप ये फायदा बना रहे हैं कि पैसे जो है अलकादर ट्रस्ट की बिल्डिंग के ऊपर लगे थे। आप ये फायदा बना रहे हैं कि इतने अकाउंट के अंदर पैसे आए थे जो अलकादर ट्रस्ट का था। तो देखिए ये ट्रस्ट है, प्रॉपर्टी टाइकून के ऊपर एक केस बना हुआ है बाहर भी और मुल्क के अंदर भी, वो उसी वक्त उन्हीं टाइमलाइंस के आसपास जो है वो प्राइम मिनिस्टर के घर पे भी जा रहा है, विजिट कर रहा है और उसी एसिड रिकवरी यूनिट के हेड के साथ जा रहा है।
बट ऑफ कोर्स इसमें तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। बैर साहब, नईम साहब कह रहे हैं कि इसमें ना कहीं फाइनेंशियल जो है वो कहीं गेंस जो हैं साबित होते हैं, और वो कह रहे हैं डॉट्स गलत कनेक्टेड हैं, और आप लोगों ने वो एसिड रिकवरी यूनिट का जो लेटर है वो आप लोगों ने कहीं घुमाया है, जो रिकॉर्ड है सारा वो आप लोगों ने घुमाया है, इनका तो इसमें वो कोई कसूर नहीं है। देखें, ये ज़्यादा ज़ुबान आम है कि शहजाद अकबर साहब जो थे वो इमरान खान के फ्रंट मैन थे। आप इनकी जो चीज़ उठाएंगे आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी। ये मैं कोई दूर नहीं जाता, आप इस शहर में, क्योंकि हम सब शहर में शहर वाल है, जानते हैं इस्लामाबाद मंडी के लोग जितने भी हैं, यहाँ दुकानें लगाई हुई थी इमरान खान की। यहाँ तो आपने ये एक चीज़ में किया ना, आप फॉरेन फंडिंग से लेकर आप इनकी सुनामी उठाएंगे, ये जो सुनामी बिलियन ट्री, आप इनका BRT उठाएंगे, आप जो उठाएंगे उसमें आपको, लेकिन अभी एक ही केस पे आप कर सकें, किसी चीज़ के ऊपर भी उठाएंगे, जो भी चीज़ें आगे चलेंगी, इनकी जो चीज़ उठाएंगे इसी तरह रहेगी। देखें, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं छोड़े इन्होंने, कोई कुछ नहीं छोड़ा इन्होंने। शहजाद अकबर साहब अपने जेबों में अलग पैसे डालते रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ अलग ये माल बनाते रहे हैं, और ये खाली एक बिजनेसमैन नहीं, ये पाकिस्तान में मल्टीपल बिजनेसमैन को इनके साथ ये करते थे कि उनको ब्लैकमेल करना, उनसे ज़बरदस्ती चीज़ें लेना, अपने मफाद निकलवाना। और यू आर प्रिवी टू द एंटायर एपिसोड ऑफ व्हेन आई वाज गेटिंग मैरिड, जब ये सारा कुछ हो रहा था। शहजाद अकबर साहब तब भी बड़े एक्टिव थे और इधर उधर घूम फिर रहे थे, हवाओं से आवाज़ें आ रही थी कि इतने पैसे पहुँचाएँ तो सब ख़त्म हो जाएगा, इतने पैसे पहुँचाएँ तो फ़लाँ जेल से बाहर निकल आएगा। ये सारों को वो कभी एक को पकड़ते थे, कभी दूसरों को। ये अब इनकी, अब आप जो चीज़ें उठाएंगे पकड़ेंगे तो आपको ये कहेंगे कि फ़लाँ चोर है, फ़लाँ गलत है, फ़लाँ ये है, फ़लाँ रसीदें दिखाएँ, बट इन रियलिटी इनकी तोशा खाना हो, इनकी कोई और चीज़ हो, इनकी हर चीज़ के आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। और जो पॉलिटिक्स से सियासी चीज़ें हैं जो इनके साथ हैं, हमारे चल रहे हैं, वो अलग हैं, और जो कोर्ट ऑफ लॉ में इनकी चीज़ें हैं वो अलग हैं। इनके पास आगे फोरम मौजूद हैं जहाँ ये अपील्स कर सकते हैं, जहाँ ये अपनी चीज़ें लेके जा सकते हैं। चोरी करते हुए पकड़े गए हैं, सबूत पास हैं, सारी चीज़ें इनके सामने हैं। अब जो फोरम अवेल करना ये करें। चलें, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। शहरा का भी इस पर पॉइंट ऑफ व्यू लूँगी, ब्रेक से वापस आते हैं, तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखाधड़ी, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत करना वगैरह संगीन जराइम हैं। अगर आप इसमें हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें। वजीर आला पंजाब की जेर क़यादत 48 अरब रुपए की खतीर रकम से वजीर आला पंजाब आसान कारोबार कार्ड, जिसके तहत स्टार्टअप्स और छोटे कारोबार को फरोग देने के लिए सिफर मार्कअप पर 10 लाख रुपए तक के आसान कर्जाजात की सहूलत और अदायगी भी 3 साल की आसान मुद्दत में। इस कार्ड के जरिए कर्ज की सहूलत, खाम माल की खरीदारी के लिए वेंडर्स को बराह रास्त अदायगी, सरकारी फीस, टैक्स और यूटिलिटी बिल की अदायगी के साथ साथ 25% तक कैश निकालने की सहूलत भी। अगर आप सूबा पंजाब के रिहायशी हैं, उम्र की हद 21 से 57 साल है, दुरुस्त शनाख्ती कार्ड मौजूद है और आपके नाम पर सिम भी रजिस्टर्ड है, आज ही ऑनलाइन वेब पोर्टल akc.punjab.gov.pk पर दरख्वास्त दें। इस प्रोग्राम से 1 लाख से जायद कारोबार मुस्तफीद होंगे। बढ़ रहा है पंजाब, बढ़ रहा है पाकिस्तान। पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, हुकूमत पंजाब। गर्दालू तामीराती साइट्स, स्मोक की बड़ी बचा। वजीर आला पंजाब की हिदायत पर तमाम तामीराती साइट्स पर 20 जनवरी तक मिस्ट स्प्रिंकलर सिस्टम की तनसीब लाजमी करार। तामीराती साइट्स पर PM 2.5 और PM 10 ज़र्रात में 80% तक कमी यकीनी। 8 मिनट में सिर्फ 1 लीटर पानी का इस्तेमाल। कीमत सिर्फ 60,000 रुपए से। 90 का 150 वाट पर चलने वाला एक एनर्जी एफिशिएंट सिस्टम, कम खर्च पर काबिल मरम्मत। ऑनलाइन और मार्केट में आसानी से दस्तयाब। बिल्ट इन टाइम कंट्रोलर के साथ कानूनी कार्रवाइयों से बचने के लिए मिस्ट स्प्रिंकलर सिस्टम की तनसीब अमल में ला। हुकूमत पंजाब। मुल्क में कारोबार, मईशत और बरामदात में बेहतरी के लिए 36 अरब रुपए से जायद की खतीर रकम से बिला सूद आसान कर्जाजात का सबसे बड़ा मंसूबा। वजीर आला पंजाब आसान कारोबार फाइनेंस।
10 लाख रुपए से 3 करोड़ रुपए तक के बिला सूद कर्जाजात और 5 साल के अरसे में आसान वापसी, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विसेज से मुतल्लिका कारोबार के साथ साथ हर किस्म के कारोबार वाले सूबे पंजाब के रिहायशी जिनकी उम्र की हद 25 से 55 साल तक हो, कर्जे के हुसूल के लिए वेब पोर्टल akf.punjab.gov.pk पर ऑनलाइन दरख्वास्त दे सकते हैं। इस प्रोग्राम से 4000 से जायद कारोबार मुस्तफीद होंगे। बढ़ रहा है पंजाब, बढ़ रहा है पाकिस्तान। पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, हुकूमत पंजाब। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। शैला साहिबा, आप क्या कहेंगी इस पे जो भी पंचोता साहब बात कर रहे हैं? मैं बहुत हैरान हुई हूँ पंचोता साहब की बात पे। देखें, ब्रिटिश क्राइम एजेंसी उसको भेज रही है कि ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान का पैसा है, आप उसको कहाँ जमा कराना चाहिए? आपने उसको लाइबिलिटी अकाउंट में जमा करा दिया सुप्रीम कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट से आपको दिए गए, आपने उसको क्या कहते हैं, फिर सभी को पता है निजी हाउसिंग स्कीम के जो माने, फिर वो किस तरह से जो है वो अब तो सब अखबार में आ गया कि 16 तारीख तक आ गई कि 6 दिसंबर 2019 को जो है वो नेशनल क्राइम एजेंसी की राजदारी डीड पर दस्तखत किए गए, ये हुआ, फिर उनका कागजात को गायब किया गया। सवाल सिर्फ मेरा एक है, जो इन्होंने कहा कि 1 रुपये का भी फ़ायदा नहीं लिया। अगर चोर जो है मसरूक़ा सामान के साथ पकड़ा जाए और वो इस्तेमाल ना कर सका हो, तो क्या वो चोर नहीं रहेगा? कि चोर पकड़ा गया है, उसने वो सामान को खुर्द-बुर्द नहीं कर सका, जो सारा मसरूक़ा सामान है वो बरामद हो गया। मुझे बताएं कि वो रकम पाकिस्तान के कौमी ख़जाने में क्यों नहीं गई? तो इस तरह के दलाइल ना दें। सबने सुनी है, छोटी छोटी बातों से लेकर बड़ी बड़ी बातें तक। अब घर से भी आवाज़ें आ रही हैं कि केपी गवर्नमेंट में चली गई और वहाँ पे एक और बच्ची जो है वो उनके काम आने लगी। नाम नहीं लेना चाहती मैं, जिस तरह यहाँ पे जो है एक बच्ची फरागोगी थी जो फ्रंट जो है वुमेन थी, तो ये सब चीज़ें वहाँ भी वो मावनत कर रही थी, अब दोबारा ये कर रही थी। तो जो बातें हैं वो सब सामने आ गई हैं। जुल्फी बुखारी हों, शहजाद अकबर हों, ये सब इसमें भी रिक्वायर्ड हैं। बाकी जो जिन लोगों ने, जुबैदा जलाल हैं, परवेज़ खटक साहब हैं, जिन्होंने जो है वो किए, चलें आज़म खान को आप हटा दें। और सबसे बड़ी शीरी मज़ारी ने सबसे पहले उनके हवाले से ये बात आई थी कि उन्होंने कहा भाई इसमें है क्या? तो बाकायदा ये बात बाहर आई थी कि खान साहब नाराज़ होने लगे थे। शेख रशीद की तरफ से भी ये बात आई थी। तो एक इनके ज़माने में बड़ी अफवाहें फैलाई गई थी कि शर्जील इनाम मेमन की कश्ती पकड़ी गई पैसों से भरी। तो हम यही कहते थे कि भाई वो पैसे कहाँ हैं, उन पैसों को कहाँ रखा आपने, किधर हैं? तो ये उस वक्त इस तरह की बातें किया करते थे। तो बात यही है कि सामान समेत आप पकड़े गए, जिसके बहुत सारी चीज़ें हैं। और रही बात, 1 साल ये केस चला है जिसमें आपके वकला जो हैं वो साबित नहीं कर सकें। अब अगर कोई चीज़ है और आप समझते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो है कहा जाता है पहले रिलीफ मिलते रहे, वहाँ पे अगर आप साबित कर दें तो हमें तो कोई मसला नहीं है ना, हम तो खुश हो जाएंगे। चलें आपके साथ इंसाफ हो गया। पंचोता साहब के तरफ चलती हूँ। पंचोता साहब, इस पे भी खान साहब बहुत ज़्यादा सवालिया निशान जो है उठा रही हैं। बेशैला साहब जो बात करी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो रिलीफ का मामला है उसको जोड़ा जा रहा है। वहाँ पे जो एलिवेशंस होनी है, जो प्रमोशंस होनी है जजेस की, और कहा जा रहा है कि सारे वही जजेस उनको ही नवाजने का प्रोग्राम है जिन्होंने मेरे खिलाफ जो है वो फैसले जो हैं वो दिए हैं। एक तरफ ये आपको लग रहा है जुडिशरी से आपको रिलीफ नहीं मिल रही, इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे आपके पहले भी रिजर्वेशंस हैं, अब और ज़्यादा आ गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रिजर्वेशंस आपकी जो हैं, साथ ही साथ आपका जो मोडस ऑपरेंडा है वो बदल नहीं रहा। क्या इसकी वजह ये है कि आप समझते हैं कि वो जो अमेरिका में एक तब्दीली आनी है, 20 तारीख को जो तब्दीली आ रही है, सारी नज़रें जो हैं वो उसी की तरफ टिकी हुई हैं? आप क्या ये वजह है? देखिए, बात यह है कि खान साहब हमेशा कहते हैं कि मैं अपने मुल्क के अंदर रहूंगा, मुल्क से कभी बाहर नहीं भागूंगा, ना मैं डील करूंगा, ना मैं एनआरओ मांग रहा हूं। जिन्होंने एनआरओ मांगे, जिन्होंने डील करके बुलाए, वो आपके सामने है, वो आज मसनद पर बैठाए गए। आज इमरान खान जो है वो झुकते, वो आगे सर नखू करते और फिर उनको इंशाल्लाह
پھر ان کو جو ہے وہ مسند پر بیٹھایا بھی جاتا. لیکن وہ تو ڈٹے رہے. دوسری طرف بات یہ ہے کہ ہم نے امریکہ سے کیوں کہنا ہے کہ جناب آپ آئیے اور آپ آ کر جناب جیل کا دروازہ کھولیے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنا عدالتی راستہ جو ہے ہم تو اپیل کے لیے جا رہے ہیں ہائی کورٹ کے اندر. ہم تو اپیل کے لیے اور اس کے ساتھ دیگر کیسز ہیں ان کو جا کر فیس کرتے ہیں اڈیالہ جیل کے اندر یا دیگر جگہوں پر. آپ کی امیدیں تو امریکہ سے اس وقت وابستہ ہیں نا، ٹرمپ صاحب سے جو لابینگ ہو رہی ہے وہاں پہ، جس قسم کی برکی صاحب ٹویٹس کرتے ہیں، تو وہ نظریں تو وہاں پہ لگی ہوئی ہیں 20 جنوری کی انوگریشن کے بعد. نہیں دیکھیں، پاکستان کا جو سسٹم ہے جو اس وقت یہاں لوگ بٹھائے گئے ہیں وہ بیسیکلی آپ دیکھیں تو وہ ظالم حکومت، ظالم حکمران جابر ہیں. تو یہ تو پاکستان کی عوام کو عوام ہی نہیں سمجھتے. تو ہم بالکل انٹرنیشنل سطح کے اوپر معاملہ ضرور بنیادی حقوق کی خلاف ورزیوں کا اٹھا رہے ہیں. میں خود کمیٹی کا ممبر اور آج بھی خان صاحب کی طرف سے انسٹرکشن ملی ہیں کہ میں آج موجود تھا جیل میں. خان صاحب نے کہا کہ بالکل آپ اس کو انٹرنیشنل فورم کے اوپر لے کر جائیے. ہم نے کمیٹی بھی بنا جگہ پر کریں گے. ہم جو چیف اپنا آئینی بینچ کے سربراہ ہیں ان کو بھی اور ہر جگہ پر اپنی آواز بلند کریں گے. بنیادی حقوق پر آواز اٹھانے کو آپ لابنگ نہیں کہہ سکتے. آپ یا تو آپ اس چیز سے انکار کریں کہ پاکستان کے اندر حقوق ہیں. اگر ملٹری کسٹڈی کے اندر بھی لوگوں پر تشدد کیا جا رہا ہے، اگر جیلوں کے اندر بھی تشدد کیا جا رہا ہے، اگر جھوٹے کیسز میں ایک کے بعد ضمانت کے بعد دوسری کیس میں پکڑا جاتا ہے اور ان کی ضمانت نہیں ہو رہی یا ان کی فیملیز کو تھریٹس کی بچائی گئی اور ان کے ورثاء کو پنچوتا صاحب، کیا آپ نہیں سمجھتے کالو فیل میں اس میں تضاد آ جاتا ہے؟ حقیقی آزادی سے لے کر آج آپ اسی ملک کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ جی ہمیں وہاں سے شاید کوئی ریلیف ملے گی، اور لابینگ تو باقاعدہ ہو رہی ہے. اب اگر سینکشنز لگتی ہیں پاکستان پہ امریکہ کی جانب سے تو آپ کے لوگ وہاں پر جو ہیں زلمے خلیل زاد کی ٹویٹس کو جو ہے ری ٹویٹ کرتے ہیں، اس کو انڈورس کرتے ہیں. تو لابینگ تو باقاعدہ ہو رہی ہے. جو آپ وہاں پہ کہہ رہے ہیں جی ہماری حق میں آوازیں اٹھ رہی ہیں اور آپ کی وہاں سے ایکسپیکٹیشنز ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں گو کہ جب آپ بہت سارے لوگوں سے بات کریں امریکہ میں جو مقیم ہیں، جو ڈپلومیٹس ہیں یا جو سارا جو اسٹیٹ کرافٹ ہے اس کو سمجھتے ہیں، وہ یہ بات کرتے ہیں کہ شاید آپ کی بہت آپ نے اوور ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ اپنی امریکہ کے ساتھ لگائی ہوئی ہیں. اسٹیٹ کرافٹ اس طرح نہیں چلتا، لیکن نظریں تو آپ کی ہیں وہاں پر. نہیں دیکھیں، آپ اگر مثال لے لیں فلسطین کی، تو فلسطین کے اگر ظلم کیا جا رہا ہے اسرائیل کی طرف سے، تو اگر فلسطین کے حق میں کوئی دنیا کا ملک آواز اٹھاتا ہے اور وہ اس کو ری ٹویٹ کرتے ہیں یا اس کے اوپر کمنٹ کرتے ہیں کہ آپ کی مہربانی کہ آپ ہمارا نیوکلیئر پروگرام پہ جب سینکشنز لگیں تو اس کو ٹویٹ کیا زلمے خلیل زاد صاحب نے، جس کو ری ٹویٹ کیا برکی صاحب نے. وہ فلسطین نہیں ہے. اسی طرح سے کر رہے ہیں. نہیں دیکھیں، لابی نہیں ہے. میں وہی گزارش کر رہا ہوں کہ یہ لابی نہیں ہے. یہاں پر ظلم ہو رہا ہے اور ظلم کے حق میں اگر کوئی جو ہے وہ بات کر رہا ہے تو ضرور ہے ہم اس کو کہیں گے کہ آپ کی مہربانی ہے، آپ کی نوازش ہے کہ آپ نے یہ بات کی ہے. اگر کوئی غیر قانونی عمل کرنے کا کہے، غیر آئینی طریقے سے حکومت ہٹانے کا کہے، یا کوئی ایسا عمل جو پاکستان کی جمہوریت کے اوپر حملہ ہو اور وہ بات کرے، تو پھر ہم تو اس کو مخالفت کریں گے. یہ پاکستان کی عوام جو ہے یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کا ایک بندہ یا دو بندے، یہ پاکستان کی عوام ریئیکشن دے رہی ہے کہ پاکستان میں یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. آج جو مہنگائی ہے، آج جو ملک کی بدحالی ہے، آپ خالی ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان میں معیشت بڑی کنٹرول ہو گئی ہے، پاکستان کے اندر جو ہے وہ نہریں بہہ گئی ہیں، کھانی پڑے گی. ٹماٹر کا ریٹ کم ہوا ہے، گھی کا ریٹ، پیٹرول ٹماٹر کے لیے تو بڑے لیڈر نہیں ہیں، وہ ڈنکیاں لگا کر نہیں جا رہے. اگر ڈنکیاں جاتے ہوئے چند دن پہلے لوگ ڈوبتے ہیں تو وہ کیوں ڈوب رہے ہیں؟ وہ کیوں جا رہے ہیں؟ وہ اسی وجہ سے جا رہے ہیں کیونکہ آپ کے ملک کے اندر معیشت جو ہے وہ ہے نہیں، آپ کے ملک کے اندر روزگار ہے نہیں، تو لوگ روزگار کی خاطر وہ باہر جا رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں 2-2.5 سال کے اندر 20 لاکھ سے زیادہ لوگ ملک سے باہر جا چکے ہیں. وہ کیوں جا چکے ہیں؟ اسی وجہ سے جا چکے ہیں کیونکہ آپ کے ملک کے اندر صرف کرپٹ لوگ آ کر بیٹھے ہوئے ہیں جو ملک کو صرف تباہی کی دہانت کے اوپر لے گئے، جو ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. تو ہم اس سسٹم کے اندر رہ کر ہم اس سسٹم کے خلاف لڑائی کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ عوامی نمائندہ حکومت ہونی چاہیے. جو 8 فروری کو ڈاکہ ڈالا گیا، آج خان صاحب کی طرف سے بڑی واضح ہدایت تھی، ہم پورے ملک کے اندر پرامن احتجاج کی طرف جا رہے ہیں اور پرامن احتجاج 8 تاریخ کو پورے ملک میں ہوگا. کے پی میں بھی ہم پورے کے پی سے اکٹھا کر کے وہاں پر علی امین کو لیڈ کریں گے اور وہاں پر احتجاج ہوگا. تو ہم تو پرامن طریقے سے اپنا جنگ جو ہے وہ جاری رکھیں. بالکل احتجاج کریں، جمہوریت میں اس کا حق بھی ہوتا ہے اور اس کو الاؤ بھی کرنا چاہیے. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس پرامن احتجاج جو ہے یہ اسلام آباد کی طرف گامزن ہوگا یا اس سے آپ کو مطلوبہ نتائج جو ہیں وہ حاصل ہوں گے، وہ تو میرا خیال ہے ماضی میں آپ نے ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ لیا، اس سے نہیں ہوگا. بات چیت سے ہی جو ہے وہ آگے چلے گی. میں ذرا دانیال صاحب کی طرف چلوں. دانی صاحب، یہ جو خان صاحب نے اپنی ٹویٹ میں بھی ذکر کیا ہے ججز کا،
और अगेन सुप्रीम कोर्ट पे तो बहुत बड़ा जो है सवालिया निशान ऑलरेडी जो है वो लगा चुके हैं। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो नई एलिवेशंस होनी है उस पर भी कर रहे हैं। ये पूरे जुडिशल सिस्टम को इसने गदला कर दिया है, इस पे सवालिया निशान उठा दिए हैं, इस पे जो है उंगलियां उठ रही हैं। देखिए डॉक्टर साहब, ये जो आपने बात यहाँ की, हम बात कर रहे थे पहले एक लॉबी की, वो ज़ुल्म खलीलज़ाद की हो या ये पूरी पाकिस्तान की एंटी लॉबी हो, इनकी जमात की एक पॉलिसी है वो डे वन से कि जो इदारा, जो इंस्टीट्यूशन इनके हक़ में बात नहीं करेगा उसको ये कॉन्ट्रोवर्शियल करेंगे। वो दिफाई इदारा हो, वो आपका मुल्क के रियासती इदारे हों, वो आपके लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हों, वो आपके जुडिशल सिस्टम हों, उन तमाम को ये कहेंगे। और ये इनका एक पुराना तरीका है। देखें, आज ये पाकिस्तान के लोगों को क्या कहते हैं कि हम इस मुल्क को क्या गुलाम है, ये इनका नारा था कि मीर जाफ़र, मीर सादिक का ख़ताब दे रहे थे न्यूट्रल होने पे। आज ये कहते हैं कि हम, और फिर उन्होंने कहा कि हमें अमेरिका ने निकाला। अब इनकी जो नई कहानी है वो ये है कि हम पाकिस्तान को, इमरान खान जो, अमेरिका जो है, डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका इमरान खान को बाहर निकालेगा, उसके बाद इमरान खान जो है पाकिस्तान को आज़ाद कराएगा अमेरिका से, ठीक है ना, और डोनाल्ड ट्रंप से। ये इनका एक नया नैरेटिव है। ये हर रोज़ एक नई कहानी, एक नया फसाद के साथ इनकी जो पीछे फंडिंग कर रहे हैं बैठकर, जो बाहर जो पाकिस्तान में 29 नवंबर को लाशें देखना चाहते थे और जो चाहते थे यहाँ हज़ारों सिविलियंस की लाशें हों, वो वहाँ अगले दिन जो वो गाड़ियाँ चल रही थी न्यूयॉर्क में, लंदन में, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, वहाँ तो एक दिन में आपको परमिशन नहीं मिलती किसी रेस्टोरेंट की बुकिंग कराने की, और अगले दिन ये चीज़ें रोड्स के ऊपर अप्रूवल्स के साथ चल रही थी। ये इनके पीछे जो लोग फंडिंग कर रहे हैं वो इस मुल्क को कमज़ोर देखना चाहते हैं, इस मुल्क को कमज़ोर करना चाहते हैं, इसके इदारों को, उनको आलमी रेटिंग के ऊपर। हदफ है पाकिस्तान, और पाकिस्तान को कमज़ोर करने का एक ही तरीका है, इसके अफवाज के ऊपर हमला करो, इनकी लीडर्स के ऊपर करो, जुडिशरी को वीक करो, जुडिशरी को कॉन्ट्रोवर्शियल करो, और आप कॉन्ट्रोवर्शियल करते करते चीज़ों को एक बयानिया बनाओ, और रोज़ उसको बनाकर आपने जो पहले झूठा बयानिया और बनाए, इस बयानिया को भी आप उठाकर हवा पे ले जाओ। जुडिशरी को कॉन्ट्रोवर्शियल करने वाली बात है इसमें। ऑब्वियसली आईब्रोज आर रेज्ड कि ये 3 जजेस के नाम जिन्होंने खान साहब के खिलाफ जो है वो फैसले दिए हैं, कुछ उसमें जो है वो उड़ भी गए उसके बाद। बट हैविंग सेड दैट, इज दिस अ कोइंसिडेंस कि जिन्होंने उनके खिलाफ फैसले दिए हैं वो उनकी वो एलिवेशन लिस्ट में 4 असामियां फिल होनी है, 19 एप्लीकेंट्स वाले बनाए हुए हैं। प्रैक्टिस आपका अगर टाइम पूरा है, आप प्रमोशन के ड्यू हैं, आप प्री रिक्विजिट्स पूरे करते हैं, तो आपने इमरान खान की कौन झूठी सजाएं दी हैं? इमरान खान चोरी करते हुए नहीं पकड़ा गया, इमरान खान पहले झूठ नहीं बोलता रहा, इमरान खान लेकिन तोशाखाना केस में तो उनको जो है वो मिल गई है। तोशाखाना में क्या चीज़, तोशाखाना वो केस है जो एक, मैं कहता हूँ गूंगा बहरा बंदा भी उसको समझ आ जाती है क्या किया है। कोर्ट में उसका क्या हाल हुआ है, तो हम तो कोर्ट्स की बात कर रहे हैं ना, कोर्ट्स में उसका। तो अब जिन्होंने अब फैसले दिए हैं, ये जो डेयरिंग स्टेप लिए हैं, क्या आप उनको इस बात के ऊपर, क्योंकि आपने एक वो फैसला दिया है जो हकीकत के ऊपर मबनी है, तो उसको प्रमोट ना किया जाए या उनको एलिवेट ना किया जाए? ये कोइंसिडेंस है। नो, दीज आर नॉट कोइंसिडेंस। आपने इन्हीं जजेस ने उठना है। इनके तो आप देखेंगे, इनके तो रोज कल आप कहेंगे कि इनके लोगों को जो सजाएं हुई हैं 9 मई के, उन जजेस की किसी की एलिवेशन होगी, या आप कहेंगे जो इमरान खान के और केसेस जो सुन रहे हैं उनकी अगर किसी की होगी। देखिए, लेकिन ये एक अब इसमें से जो 19 जजेस में से 3 वही जजेस जिन्होंने जो है, एक ने 17 तो वो नहीं है ना, 17 और जजेस में 17 तो वो नहीं है। मतलब आपने इन्हीं लॉट से लेना है जो डिलीवर करते हैं, जो अपनी काम की कारकर्दगी में, एक्सपीरियंस में पूरा उतरते हैं, जिनकी जजमेंट्स स्टैंड आउट करती हैं, जिनकी जजमेंट्स देखें ना जो देखें उस पे तो राना सनाउल्लाह ने स्टैंड आउट करने की जो जजमेंट की बात कर रहे हैं, जो केस इलेक्शन से पहले जिसमें खान साहब को फिर जो है वो जेल में डाला गया, इवन राना सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं कि जिस उजलत में उसको चलाया गया, that did more damage to us than good. तो उस जज को किस तरह कहते हैं क्योंकि 19 घंटे के अंदर जल्दी में चलाया गया, जो भी हम कहते हैं कि 19 घंटे के अंदर तो फिर वो स्टैंड तो नहीं कर रहा ना। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि गलत फैसले हैं, इसका ये मतलब तो नहीं कि इन्होंने वो चीजें नहीं की। मुझे एक बात बताएं, जो चीज प्रूवन फैक्ट्स के साथ मौजूद है, सामने है, जिसमें ये रंगे हाथों पकड़े गए हैं, नहीं, लेकिन देखिए ना, कानूनी तकाजे 19 घंटे के अंदर तो पूरे नहीं हो सकते ना, जिस उजरत में जो है वो चलाया गया। कोई पूरे नहीं हुए थे जी, इनके तो पीछे पूरी तारीखें, चीजें, एक पूरा पीछे एक बैकग्राउंड के साथ चीजें चलाई गई और उसके बाद वो फैसले आए। शैला राय साहिबा, आप क्या कहेंगी, जिस तरह जो नाम आ रहे हैं, चले नाम अभी आ रहे हैं, आए नहीं है, लेकिन ये जो आ गए हैं ये वो जजेस हैं जो प्रपोज हो चुके हैं, तो जरूरी है कि आपके अगर केसेस में
मैं सारे बहुत अभी तक सारे वो चूज भी नहीं, अब चूज होंगे चूज नहीं हुए। हाँ जी, यही मैं कह रही हूँ ना, अभी तक उनको फाइनलाइज तो नहीं किया गया है। दूसरी बात ये कि जो ये केस भी था 190 मिलियन पाउंड का या जो भी जितने भी पाउंड का जो भी, इसमें एक साल में एक दफ़ा भी आवाज़ नहीं आई कि इस जज से हम मुतमईन। हाँ ये तो नहीं आई, बाद में आई। तो ये सारी देखने की चीज़ें होती हैं और ये बिल्कुल वही बात है कि मुझे पसंद नहीं आया तो सामने वाला बुरा, और मेरी मर्ज़ी के मुताबिक हो गया तो सामने वाला मैं सच्चा था। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम बहुत सारी जगहों पे हमें भी बहुत जगह ये महसूस हुआ कि गवर्नमेंट की तरफ से कमज़ोर केस लड़ा गया, वरना सज़ा हो सकती थी। तो ये चीज़ें भी महसूस की गई और ये लोगों ने बड़ा खुल के कहा, क्योंकि इन केसेस के साथ साथ बहुत सारी आपको ऑडियो लीक्स भी मिलती थी कि बेटा घर में आई हुई चीज़ों की तस्वीरें नहीं खींचते। ऑडियो लीक को प्रूव करना ये हमारा ही, या तो उसमें फिर कानून चेंज करें ना कि उसमें, बेटा घर तो में जो चीज़ें आई आपने उनकी तस्वीरें क्यों खींची, या ये डायमंड वाली इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। तो मैं तो समझती हूँ कि गवर्नमेंट साइड भी कमज़ोर रही है बहुत सी जगह पे, जहाँ पे वो प्रूव नहीं कर सके, सही से लड़ा नहीं, ये सब। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन इन सब चीज़ों के साथ हमें एक बात पे हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि हमें सीखना चाहिए कि किस तरह से हमने सब्र किया और 44.5 साल बाद लोगों को पता चला कि हमने जिस लीडर के ऊपर पूरी सियासत कर ली, पूरी पॉलिटिकल पार्टीज बन गई और सब कुछ हुआ, उसको तो सही बट हम मिला वो ही नहीं। एक्सपेरिमेंट भी तो रिपीट नहीं करना चाहते ना, वी शुड नॉट रिपीट दैट एक्सपेरिमेंट तो हम रिपीट नहीं करना चाहते, इसीलिए हमने बहुत सारी जगह देखा कि हमें गवर्नमेंट कहीं कमज़ोर भी पड़ती नज़र आई। तो इंसाफ तो हो रहा है ना, अदालतें तो खुली हुई है ना, वहाँ तो खुली हुई नहीं थी। मतलब 14 साल आपने मुख्तलिफ हिस्सों में बांट के जरदारी साहब को अरेस्ट रखा, अदालत सुनती नहीं थी। खुद इनके ज़माने में नैब का केस सिंध में नहीं चल सकता था, इस्लामाबाद लाना पड़ता था जरदारी साहब को। और अपने केपीके में नैब के दारा बंद कर दिया था। इसके अलावा 4-5 साल फरियाल साहिबा को नैब ने एडमिट किया था हॉस्पिटल में, रात के 12 बजे चांद रात में उन्हें घसीट के किस तरह से जेल भेजा गया। तो फिर हम इसी विशेष साइकिल में चलते रहेंगे। हम नहीं चल कर रहे ना, ये आप देख लें कि कल बुशरा बीबी उस वक्त अरेस्ट हुई हैं जबकि इतनी दफा वो कमरा तो पहले तैयार हो चुका था, नहीं आ रही थी, लेकिन कमरा तो पहले ही तैयार हो चुका था। ये तो वो तो ऑब्वियसली एक बात पता चल जाती है कि केस की नौयत क्या है, क्या होने जा रहा है। एक जब नवाज शरीफ साहब को सजा हुई थी उससे पहले तमाम प्रोग्राम टीवी के हो गए थे, वो मैं वही बात कर रही हूँ। तो वही हिस्ट्री रिपीट हो रही है। जो लोग सुन रहे होते हैं, केस देख रहे होते हैं, एक तरीके से पता चल जाता है कि इनके वकील ने क्या कहा, इनके इसने क्या कहा, कितना ये हो गया। और वो एक समझदारी कहते थे कि फैसले जो हैं लिखे लिखाए आते हैं, बस पढ़ने होते हैं। तो फिर आज भी वही हो रहा है। मैं इसको इसलिए वो ज़्यादा नहीं करती हूँ कि मैं ये समझती हूँ कि ये फैसला तो बड़ा साफ नज़र आ रहा था कि क्या होने वाला है और सब इसको देख रहे थे बड़े अरसे से। और बात फिर वही है कि अपने ही घर से बात निकली थी और फिर भी 1 साल चला तो है। लेकिन अब ठीक है, अभी इनके पास इंसाफ के बहुत रास्ते खुले हैं और अगर गलत होगा तो सच को एक दिन सामने आना ही होता है। अच्छा पंचोता साहब, अगेन बिकॉज बात ये हो रही है कि कहीं से ये इस वक्त पहले पीटीआई पीएमएलएन पीपल्स पार्टी कहा करती थी कि जी फैसले लिखे हुए आ रहे हैं, अब आप लोगों ने ये जो है वो बात करनी शुरू कर दी है और अब आपने ऑलरेडी जो है वो क्वेश्चन मार्क्स लगा दिए हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे भी लगा दिए, पहले भी थे, अब आपने और लगा दिए। अब आप चैलेंज करने जा रहे हैं मंडे को, क्या एक्सपेक्टेशंस क्या हैं आपकी? देखिए डॉक्टर, ये बात ये है कि हम तो बिल्कुल अपना आईनी और कानूनी रास्ता इख्तियार करते हुए ये जैसे भी कंप्रोमाइज किए गए सिस्टम, उस सिस्टम के अंदर रहते हुए अदालतों से रजू भी कर रहे हैं और देखते हैं कि अदालत उसके अंदर कितनी देर लगाती है। मैं ये समझता हूँ कि जब अदालत में मामला जाता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को चाहिए कि फौरन ही इसके ऊपर समाअत करके और सजा जो है वो ख़त्म कर देनी चाहिए। उनको इस केस के अंदर इंसाफ देना चाहिए, क्योंकि कोई चीज़ साबित नहीं हुई। तमाम तर चीज़ें जितनी उठाई गई, जितनी रखी गई, जानबूझकर अलकादर ट्रस्ट केस से इसका नाम जो है वो 190 मिलियन पाउंड रखा गया और जज को भी नहीं पता कि 190 मिलियन पाउंड है या 171 जो है वो मिलियन पाउंड है। ये जब सजा सुनाने लगा जज, उस वक्त उसने 190 मिलियन पाउंड की सजा सुनाने लगा, क्योंकि ये एक रटी रटाई चीज थी और इससे पहले सहाफी भी तमाम तर चीजें पहले ही बता चुके थे कि 14 साल होगी और 7 साल होगी। अब देखिए जहाँ जजेस की बात होती है कि जजेस जो है इनके ऊपर एतराज लगाया जा रहा है और ये जजेस जो है इनके नाम है, इसके अलावा भी बड़े कॉम्पिटेंट जजेस हैं। तो मेरा ख्याल में वही कॉम्पिटेंट जजेस ने इमरान खान साहब को सजा दी या
نیکسٹ بھی وہ رکھتے ہیں ارادہ کہ یہ لوگ جو ہیں ان کو بھی یا ان ججز کو بھی چوز کیا جا رہا ہے جو کہ ایک لائن کو ٹو کرتے ہیں، کیونکہ جو لائن کو ٹو کرنے والے پہلے جج تھے ان کو تو کیا گیا، لیکن جو لائن کو ٹو نہیں کرتے تھے کسی کو ایک ریفرنس دے کے ان کو ہٹوایا یا پھر ان کو تھریٹ دیے گئے. اور اس کی مثال اسلام آباد ہائی کورٹ کے مختلف ججز ہیں، 6 ججز نے لیٹر دے انہوں نے کہا قاضی فائز یہ کس طرح مداخلت ہو رہی ہے، اس کے باوجود کہ قاضی فائز صاحب یہ دیکھ کولیگ جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں یہ بات بڑا اہم معاملہ، لیکن انہوں نے نہیں کچھ کیا. تو سپریم کورٹ میں بھی میجورٹی جب نہیں بنا وہاں کی تعداد بڑھائیں گے، باقی ججز کی تعداد بھی بڑھائیں گے. 26ویں ترمیم کا مقصد یہ تھا کہ عدلیہ جو ہے وہ آزاد ہے، کوئی کا بھی دروازہ بند کیا جائے، بلکہ وہ بھی جس کی مرضی کے مطابق ہی پھر فیصلے ہوں. جب میجورٹی ختم ہو جائے گی، ججز انصاف کرنے والوں کی تعداد ایک جگہ پر کم ہو جائے گی، تو پھر ڈیفینیٹلی جو وہاں پر وہ اپنی مرضی سے فیصلے کرے گا. اب کسی چیمبر کا جج ہو کہ جو ہے وہ گروپ کا ہے وہ کوئی ہو سلطان سے تعلق رکھتا ہو، کوئی لاہور سے تعلق رکھتا ہو یا کسی کا کوئی رشتہ دار ہو، تو وہ ڈیفینیٹلی وہ اس کے مطابق ہی وہ سارا کر رہے ہیں تاکہ وہ اپنی مرضی کے فیصلے لے سکیں. ہم بالکل اس موقف کیوں میں تو چاہوں گی ثاقب نثار اور عطا بندیال اور ان کا گروپ آ جائے کورٹ کے سامنے جانا چاہیے. جو اور نام تھے ان میرا خیال ہے تو پھر یہ خوش اگر یہ اگری کرتے ہیں تو ان کا نام سجیسٹ کروا دیتے ہیں. ان کا ایک پورا گروپ تھا 3 کا، تو وہ ان کو لے آتے ہیں. چلے پنچوتا صاحب آئی ایم سوری وہ پروگرام کا وقت جو ہے ختم ہو گیا، لیکن یہ ضرور کہوں گی کہ ایک چیز جو نظر آتی ہے ہمیں وہ یہ ہے کہ یہ ایک وشس سائیکل ہے. لگتا ہے کہ جی بار بار ہسٹری اپنے آپ کو ریپیٹ کرتی ہے. جو بات ابھی پنچوتا صاحب کہہ رہے ہیں، ججز نے جو ہے وہ کہا کہ ججز کا ذکر کر رہے ہیں، تو ماضی میں شوکت صدیقی صاحب بھی تھے، ارشد ملک صاحب بھی تھے جنہوں نے اس طرح کی باتیں انہوں نے بھی کی. اس وقت انویسٹیگیٹ نہیں ہوئی، آج بھی نہیں ہو رہی. جو ایک چیز لگتی ہے کہ ایک وشس سائیکل چلتا جا رہا ہے جس میں صرف کردار جو ہے وہ بدلتے جاتے ہیں اور چیزیں اسی طرح چل رہی ہیں. لیٹس ہوپ کہ ہم اس سے آگے بڑھ سکیں تاکہ ملک آگے بڑھ سکے. دانیال صاحب آپ کا بہت شکریہ، شیلا صاحب آپ کا، اور نئی مہندر پنچوتا صاحب تھینک یو فار میکنگ ٹائم فار دا پروگرام. ویل سی یو ٹمارو. گڈ نائٹ اینڈ اللہ حافظ. درست ہر وقت بر وقت.